In the previous video, we have already discussed about what is correlation, what are the types of correlation. We have discussed that correlation is a statistical technique that helps to find out definite relationship between two and more than two variables. The correlation, the definite relationship that exists between two variables is known as simple correlation, and the definite relationship that exists among different variables or more than two variables is known as multiple correlation. After that, we discussed about negative, positive, that is perfect correlation, then positive correlation, negative correlation, that is limited degree of correlation, then absence of correlation. After that, we discussed how correlation is calculated or find out with the help of scatter diagram. Now we will discuss about how correlation is established with the help of Karl Pearson's method. Actually beta, there are three methods. One is scatter diagram, second is Karl Pearson's coefficient of correlation, and third rank correlation, that is Spearman's rank correlation. Spearman's rank correlation has been deleted from your syllabus. So today we are going to discuss about the last topic, that is Karl Pearson's method. Karl Pearson's coefficient of correlation, Pearson's R, means coefficient of correlation is denoted by small r. Is the most common correlation coefficient. Karl Pearson's coefficient of correlation denoted by R, the coefficient of correlation R measures the degree of linear relationship between two variables say x and y. Means यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, लीनियर कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ओनली टू वेरिएबल्स को आपने यहाँ स्टडी करना है. नाउ नेक्स्ट, this is about Karl Pearson's coefficient of correlation. Karl Pearson's coefficient of correlation denoted by R, and the value lies between -1 to +1. Means what is the range of R? This is -1 to 1. Clear? -1 to 1. -1 अगर हमारा R की वैल्यू -1 आ जाती है, हम कहेंगे there is perfect negative correlation. अगर +1 आ जाती है, there is perfect positive correlation. अगर वो +1 के पास आ रहा है, हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर वो -1 के पास आ रहा है, हम कहेंगे लो डिग्री, दिस इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट. Direction of change is indicated by sign negative or positive. After this, interpretation of correlation coefficient. The value of correlation coefficient R ranges from -1 to +1. You are to keep these points in mind. What is the range of R? This is -1 to +1. If R is +1, then the correlation between the two variables is said to be perfect positive. If R is negative, then the correlation between the two variables is said to be perfect negative. If R is 0, then there exists no correlation between the two variables, that is absence of correlation. और अगर सपोज करिए R की वैल्यू आ गई 0.97. 0.97 का मतलब 1 के पास है, +1 के पास है, पर 1 नहीं है, इससे हम इसको परफेक्ट पॉजिटिव नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. गॉट इट बेटा? मूव टू द नेक्स्ट. नाउ वी विल डिस्कस हाउ it is calculated. In the earlier version, we had a formula R is equal to sigma xy by n sigma x into sigma y. आपको याद होगा ये वाला जो साइन होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है. सो अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में x और y दो सीरीज़ गिवन है, दोनों का उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो आप सीधा फार्मूला भी लगा सकते हैं. एक्स वाई क्या शो कर रहा है? एक्स वाई आपका शो कर रहा है एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई देन समेशन. सपोज करिए आपके पास जो ये दो सीरीज़ हैं, ये सिग्मा एक्स वाई आपका क्या इंडिकेट कर रहा है
पहले हम x की हर वैल्यू को y की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका समेशन लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे n। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ x, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ x एंड y। क्लियर? हम इस तरह से इसको क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ये हमारा अर्लियर वर्जन था, लेकिन जो अब हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है? लेटेस्ट वर्जन है हमारा r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। ये जो आपके पास एक्स वाई है ये एक्चुअल में डेविएटेड वैल्यूज़ है। ये स्मॉल एक्स होता है। स्मॉल एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार मीन्स एक्चुअल मीन। स्मॉल वाई का मतलब क्या है? वाई माइनस वाई बार। अभी हम अपने इन्हीं टॉपिक को, इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स करते हुए, फिर ये आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें अपने टॉपिक को। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन देर आर टू सीरीज, वन इज एक्स एंड सेकेंड इज वाई। So the very first step is to calculate mean, because we are using here direct method or known as actual mean method. Clear बेटा? हम ये मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड और एक्चुअल मीन मेथड। क्योंकि ये एक्चुअल मीन मेथड है इसलिए हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? हम सबसे पहले मीन ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और मीन ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। सो हमने यहाँ से निकाला मीन ऑफ एक्स। मीन ऑफ एक्स करते ही हमारे पास आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 7, एक्स बार इज इक्वल टू 7। और इसी तरह से हमने वाई बार निकाला, वाई बार आ गया हमारा 9। अब आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब जो अभी अभी हमने स्मॉल एक्स निकाला था, ध्यान से देखिए बच्चे, स्मॉल एक्स है ये। स्मॉल एक्स का मतलब क्या है? डेविएशन, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार। इसी तरह से स्मॉल वाई का मतलब वाई माइनस वाई बार। तो हमने क्या निकाला? डेविएशन निकाल रहे हैं हम। एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, 2 माइनस 7 इज इक्वल टू -5, सो एंड सो। यहाँ से हमारा सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 आ गई। समेशन ऑफ स्मॉल एक्स हमारा 0 आ गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। फिर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निकाला हमने, -1 होल स्क्वायर दैट इज़ 1, -5 होल स्क्वायर दैट इज़ 25, -3 होल स्क्वायर 9, सो एंड सो। यहाँ से आपका आ गया समेशन एक्स स्क्वायर, दिस इज 70। इसी तरह से y के कॉन्टेक्स्ट में भी हम सेम करेंगे। पहले हम स्मॉल y निकालेंगे, सिग्मा y आपका 0 आ गया। फिर हम y स्क्वायर निकालेंगे उसी तरह से, स्क्वायर ऑफ 0 दैट इज़ 0, स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज़ 4, स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज़ 25, सो एंड सो। तो सिग्मा y स्क्वायर आपका आ गया 50। अब अगर हम अपना न्यूमरेटर देखें फॉर्मूला में, न्यूमरेटर हमें चाहिए था सिग्मा एक्स वाई, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स था हमारा -1, स्मॉल वाई था हमारा 0, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0, देन -5 प्लस 2 समेशन, देन एक्स वाई इज -10। मतलब हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करके, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को आपस में मल्टीप्लाई करके हम निकाल रहे हैं एक्स वाई। आपको पता है ना एक्स और वाई का मतलब क्या है? एक्स मल्टीप्लाइड विद वाई, और इसका फिर हम ले लेंगे समेशन। हमने इसका समेशन ले लिया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। फॉर्मूला क्या था हमारा? यहाँ पर उसे क्वेश्चन में माइनस लगाया हुआ है क्योंकि हमारा सिग्मा एक्स वाई -14 आया है। अदरवाइज़ हम यहाँ माइनस ही लगाते, हम फॉर्मूले में सिग्मा एक्स वाई लिखते हैं। एक्स कौन सा है? स्मॉल एक्स। वाई कौन सा है? स्मॉल वाई। दैट इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स इंटू डेविएशन ऑफ वाई, देन डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट इज समेशन ऑफ deviations from x, multiplied by summation of square of
deviations of y, then square root. This is, now substitute the value, sigma xy minus 14 आपने पुट किया, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिस इज 70 आपने वैल्यू को पुट किया, सिग्मा वाई स्क्वायर 50 आपने वैल्यूज़ को पुट किया, स्क्वायर रूट का साइन लगाया. सो -14 बाई 3500. अब 3500 को फिर उसी तरह से हम अपना निकालेंगे. देखो बच्चे, मेमोरी को रिकॉल करिए. 6 × 6 36, 16 × 60 3600. हमारे पास क्या है, 3500 है, मतलब 60 से कम है ये, तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेशन में 59.16 दे दिया, 59.2 दे सकते थे आप. फिर इसको हम जब डिवाइड करेंगे यू विल हैव r इज़ इक्वल टू -0.23. अब माइनस का साइन है, इसका मतलब नेगेटिव है और कैसा है, -1 से काफ़ी पहले है, ये -1 से काफ़ी पहले है, तो हम क्या कहेंगे, देयर इज़ लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y. हम क्या कहेंगे, देयर इज़ लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y. बच्चे बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है. हम दो वेरिएबल्स x और y, एक x की सीरीज़ थी, एक y की सीरीज़ थी, हम इन दोनों का फाइंड आउट कर रहे थे. हम इन दोनों का कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ले रहे हैं. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम पहले x बार निकालेंगे. जैसे ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ में हम x बार कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ x डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ x. इसी तरह से हम मीन ऑफ y निकाल लेंगे, y बार निकाल लेंगे, कैसे, समेशन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ y डिवाइड बाय n. फिर हम लेंगे सेकेंड स्टेप में डेविएशंस फ्रॉम x, डेविएशंस फ्रॉम y, फिर जो डेविएशन फ्रॉम x दी है उन सबको स्क्वायर करके हम फाइंड आउट करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर. गॉट इट बेटा. इसी तरह से स्क्वायर ऑफ डेविएशन लेंगे, हम क्या करेंगे, जो आपने y की डेविएशन सी थी, ये आपका 0 आया था, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो. यहाँ से आपके पास सिग्मा समेशन ऑफ y स्क्वायर आ गया 50. फिर हम लेंगे एक्स वाई क्या है आपका, स्मॉल x एंड स्मॉल y. इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेंगे. प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का मतलब जो डेविएशन x की थी -1, जो डेविएशन y की थी 0, दोनों का प्रोडक्ट 0. फिर नेक्स्ट देखो, -5 देन मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस इज -10. फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 दिस इज 15. क्योंकि 3 और 5 दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी तो पॉजिटिव आ गया. यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई में कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी, कुछ पॉजिटिव आएंगी. इससे सिग्मा एक्स वाई हमारा नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है. लेकिन सिग्मा एक्स स्क्वायर जब हमने लिया था, हमारी एक्स स्क्वायर में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई थी, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे थे, इसलिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आएगा. इसी तरह से जब हमने वाई स्क्वायर लिया था तो ये स्क्वायर था, इससे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई थी, इससे स्क्वायर समीशन ऑफ वाई स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव आया था. सो सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज़, you will get the answer. Clear beta? So this is how coefficient of correlation is calculated in a series by using direct or actual mean method. Now move to the next example. Again we have an example. This is series X. This is series Y. The very first step, find out X bar. 105 divide by 5. सो एक्स बार इज़ इक्वल टू 21. अब पहला स्टेप क्या है, हम लेंगे डेविएशंस फ्रॉम एक्स, मतलब स्मॉल एक्स निकालना है. स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार. सो 15 माइनस 21 माइनस 6, 18 माइनस 21 माइनस 3, सो एंड सो. ये आपका आ गया समेशन एक्स. 0 आ रहा है, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है. देन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर. -6 होल स्क्वायर 36,
-3 होल स्क्वायर 9, 3 होल स्क्वायर 9, 0 होल स्क्वायर 0। यहाँ से आपके पास आ गया समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90। सिमिलर प्रोसेस वाई में फिर से हम वाई बार निकालेंगे। दिस इज सिग्मा वाई दैट इज़ 140 डिवाइड बाय 5 क्योंकि देर आर n इज़ 5 फॉर वाई ऑल्सो। सो यहाँ से आपका आ गया स्मॉल वाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, वाई माइनस वाई बार 25 माइनस 28 इज इक्वल टू -3, 25 माइनस 28 इज इक्वल टू -3, सो एंड सो। फिर हम निकालेंगे वाई स्क्वायर मीन्स -3 होल स्क्वायर 9, -3 होल स्क्वायर 9, -1 होल स्क्वायर 1, 3 होल स्क्वायर 9, 4 होल स्क्वायर 16। यहाँ से आपका सिग्मा दैट इज समेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 44। फिर हमें चाहिए एक्स वाई का फॉर्मूला रिकॉल करिए, स्मॉल एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल वाई। सो -6 इंटू -3 क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं पॉजिटिव हो जाएगा। सो 6 इंटू 3 18, -3 इंटू -3 9, सो एंड सो। सो समेशन एक्स वाई आपका आ गया 60। अब हम उसी तरह से अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आपका फॉर्मूला था, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। This is the formula, r is equal to sigma xy by sigma x square into sigma y square then whole square root. So on substituting the values we will get the answer r is equal to 0.95. So हम यहाँ से क्या find out करेंगे, there is high degree of positive correlation between the two variables x and y because प्लस में वैल्यू है इसलिए पॉजिटिव है, 1 के काफ़ी पास है इसे हम क्या कहेंगे, देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। गॉट इट बेटा? नाउ व्हाट्स अबाउट योर होमवर्क? आई एम गिविंग यू 2 numericals. Calculate coefficient of correlation. I am giving you 2 numericals along with the answer. So do practice of these numericals and find out the and tally your answer. ठीक है, जो आपके पास आंसर है उसके साथ इसको टैली करिए। नाउ व्हाट्स अबाउट योर होमवर्क? do practice of textual question and you can send me your doubts either on app or to me personally. Clear beta? So be sincere, do your work properly, have a wonderful day, enjoy your day, keep practicing the numericals. These are very, very important. Got it beta?